चलिए तो अभी ज्यादा तो आपने नहीं बोला था, तो शुरू से नहीं, ही कर कोई दे नहीं। दोबारा। तो meditation literally means concentration, but concentration is only the beginning of the process of meditation. And concentration alone does not qualify as spiritual meditation, because राइट। the difference is that in spiritual meditation, mind does not travel anywhere, it stays in its place. And through concentration, we are trying to achieve this stage, meditative stage. And to begin with meditation practice, our there are we everybody faces certain problems, like because our body is not used to it. There is a haphazard flow of prana in our body, and to align it, it's advisable that we do a few minutes of yogic exercises in which there are few asanas. What was mentioned last time was Tadasana and Bhujangasana, but there may be a few more, followed by a few minutes of pranayam. Pranayam can be that Ekadashi Ujjayi, which is 5 seconds inhale, 1 second hold, and then 5 seconds exhale for 5 minutes, or it could be an Ulom Vilom also. Then uh, what basically meditation is doing is it is calming the mind. Mind becomes calm. Uh, and calmness means that there is deactivation of vasanas which result into vichars. So once the mind is calm, it means that it is able to control both the left side and right side of our brain, the thinking part and the emotional part. And uh, it starts affecting our breathing pattern. It starts affecting our solar plexus chakra, and pran starts getting aligned, and gradually our resilience to handle the conflicts that improves. Meditation basically is expanding our awareness, and uh, whereas if we only talk of concentration, we go to a point of self forgetfulness. But in spiritual meditation, self expansion takes place. But it's a matter of experience, how you can feel it. There are two routes uh, of meditation. Either it can take you towards siddhis or towards self realization, depending upon which choices we make. So, this is what we all covered last time. वेरी। हाँ जी। इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन या चेंज डिस्कस करना चाहें तो पहले वो क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़े। क्योंकि बहुत ब्रीफली मकरन ने वो डिस्क्राइब किया था, तो कुछ वर्ड्स जो है आगे पीछे हो जाते हैं उसमें, बात हाँ, है नहीं, वो तो है, बिल्कुल। है ना। तो इतना जो था उसके बारे में पहले क्लैरिफाई कर लेते If there are any doubts, that is, I think we can raise. हैं। हाँ।
चलिए ये तो अच्छा है, और सबको पूरी तरह समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात। ऐसा हम सोचते हैं कि हमें आ गया समझ में। वो कहते हैं कि जब अगर कोई ना आपको कुछ पूछे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पूरी तरह समझ में आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। या वही है। नहीं, ठीक है जी। तो जो की थी इसमें दो तीन जो की फैक्टर थे, वो थे कि भाई मेडिटेशन करने से पहले, मैं एक तो वो मिसकंसेप्शन है कि मेडिटेशन जो है वो कंसंट्रेशन ही होती है सिर्फ, और मेडिटेशन से माइंड को काम किया जाता है। वो एक्चुअली मेडिटेशन, जब माइंड काम होता है तो मेडिटेशन तब शुरू होती है। अब से तो कुछ ना कुछ मेडिटेशन से पहले माइंड को काम करने की आवश्यकता होती है। तो वो जो कामनेस है वो तभी आती है जब आपके जो प्राणा है वो अलाइन होते हैं, जो प्रॉपरली फ्लो कर रहे होते हैं बॉडी और माइंड से, तो अब आदमी काम हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए कोई ऐसी एफर्ट नहीं है। मतलब प्राणा को अगर आप अलाइन कर लेंगे तो कामनेस अपने आप आ जाएगी। और वहाँ इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई उसको मेडिटेशन, रियली मेडिटेशन करने से पहले पहले थोड़ा फिजिकल बॉडी पे एक्ट करा जाए, ताकि फिजिकलिटी के अंदर प्राण जो है वो थोड़े अलाइन हो जाए, और उसके बाद में श्वास के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर किया जाए, क्योंकि उससे प्राण जो होते हैं वो और ज़्यादा अलाइन हो जाते हैं। तो स्टार्ट इसलिए हम करते हैं योगा से, कि भाई कुछ 2 4 5 योगा के आसन करें और 10 मिनट योगा करें। एंड ये इसमें की ये है कि आपको योगा के जो आसन है वो होल्ड करने हैं। उसको आपको जल्दी जल्दी एक आसन, दूसरा आसन, तीसरा आसन ऐसे नहीं करना है। हर आसन को आपको होल्ड करना है, और उसका जो टारगेट है वो ये है कि 30 सेकेंड्स तक अगर आप होल्ड कर सकें। तो जब हम लोग शुरू करते हैं तो जनरली 30 सेकेंड्स तक होल्ड नहीं होता, 15 20 सेकेंड तक ही हो पाता है। कोई आसन हो जाते हैं, कोई आसन नहीं होते। तो वो थोड़ी सी वो प्रैक्टिस की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, बट जितनी आप उसको होल्ड करेंगे उतना प्राण का अलाइनमेंट बेटर होता है। तो और इसमें ये भी हमने चर्चा की थी कि भाई वो सूर्य नमस्कार आसन जो है वो करना। तो सूर्य नमस्कार का डिफरेंस ये था कि उसके अंदर आपको बहुत क्विकली अपने आसन चेंज करने होते हैं। तो वो आपके फिजिकल बॉडी के लिए तो अच्छा होता है, माइंड के लिए भी होता है, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर रेफरिंग टू। जो अगर आप मेडिटेशन का पर्पस है आपका, तो मेडिटेशन पर्पस के लिए आपको होल्ड करने हैं आसन। तो इसलिए अगर आप 5 मिनट भी करें, आप दो आसन भी करें, अगर आप होल्ड करें तो आपको अलाइनमेंट अपने आप नजर आना शुरू हो जाता है। तो अलाइनमेंट कैसे नजर आता है कि एक तो आपकी बॉडी अच्छा फील करना शुरू हो जाती है, दूसरा आपका माइंड काम होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में वो प्राणायाम की बात हुई थी। तो प्राणायाम में यह था कि भाई या तो आप शुरू करें तो किसी पर्सनली किसी के साथ बैठ के करें जिसको आता हो, तो आप ठीक से वो आपको बता देगा कि कैसे ब्रीथ करना है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास ना हो, तब आप एकादशी उज्जयी से शुरू करें, जो कि 11 सेकंड की, 11 से 12 सेकंड की ब्रीदिंग की साइकिल है। 5 सेकंड 5 सेकंड 1 सेकंड जो है वो, उसमें वो 11 12 सेकंड का बनता है। इसमें सिर्फ ये है कि ख्याल रखने की बात कि जो आप ब्रीद इन यानी इनहेल करते हैं वो, और ब्रीद आउट जो करते हैं वो, दोनों सेम सेम लेंथ के होते हैं, उसकी ड्यूरेशन सेम होती है। ये करने से, ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपका जो, अगर मेडिकली उसको देखें तो जो आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो बैलेंस हो जाता है। तो मेडिकल टर्म्स के अंदर इसको हम कहते हैं कि भाई सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक या नर्वस सिस्टम जो बैलेंस हो गया। बट वही चीज़ को अगर जब हम प्राण के हिसाब से बोलते हैं तो हम कहते हैं कि आपके प्राण अलाइन। और भी इसको ऐसे भी बोल देते हैं कई बार कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है वो बैलेंस हो गया। बट एकादशी उज्जयी का एक फायदा और भी है, जो कि बहुत ही फिजिकल लेवल के ऊपर बहुत अच्छा फायदा है उसका। और वो फायदा है कि आपका जो
एक टर्म होती है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV बोलते हैं उसको। तो HRV जो है ये, लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करते हैं और हमारा जो हार्ट बीट है वो चल रही है, तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं ना, आप हार्ट बीट काउंट करते हैं आपकी कि भाई 76 चल रही है, या 72 चल रही है, या 80 चल रही है, या 85 चल रही है, जो भी है, इस तरह से आप काउंट करते हैं नॉर्मली आप। तो उसके पीछे एक एजम्पशन होता है कि भाई ये जो फ्रॉम वन बीट टू अनदर बीट जो इंटरवल है वो सेम है। ये एक एजम्पशन है, क्योंकि जब हम कहेंगे ना कि भाई 76 बीट्स पर मिनट, तो अगर कोई कहे कि ठीक है तो फिर 10 सेकंड में कितनी हुई, तो आप इमीडिएटली कहोगे 7.6, मतलब वट जो भी आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे उसमें, वो ऐसे लगता है कि जैसे एक बीट से दूसरी बीट वो सेम इंटरवल के ऊपर है, बट इन रियलिटी वो सेम इंटरवल नहीं होता। एक्चुअली वो जो ड्यूरेशन होती है बीट टू बीट की, वो डिफरेंट होती है। अच्छा, वो डिफरेंट होना इज ए गुड थिंग। सो ऐसा नहीं समझना है कि भाई वो डिफरेंट है तो इसलिए वो अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि वो अच्छी चीज़ है। तो इसका इसका कारण ये होता है कि ये जो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो आपको फाइट एंड फ्लाइट वाली जो रिएक्शन है वो देता है, तो उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब कभी भी देखेंगे ना, स्ट्रेस सिचुएशन जब भी आएगी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना, वो उसकी ब्रेक का काम करता है, क्योंकि अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो हार्ट बीट बढ़ती जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो बॉडी के अंदर उसको काउंटर करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करना शुरू हो जाता है। तो वो जो है उस हार्ट बीट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देता, या ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं ऊंचा उठने देता। तो ये दोनों जो सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, ये दोनों सिस्टम्स का प्रॉपरली फंक्शन करना बॉडी में जरूरी है। अगर वो जब भी इनका बैलेंस बिगड़ता है तो आपको हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है। अच्छा, तो उसमें होता क्या है कि हम लोग जो मॉडर्न लाइफ है ना, इसके अंदर हम लोगों का ज़्यादा टाइम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में निकलता है और कम टाइम हमारा रिलैक्सिंग सिचुएशंस में निकलता है। ये मॉडर्न लाइफ का ये एक कहना ड्रॉबैक है कि आपको मैक्सिमम टाइम जो डे के अंदर आप वेकिंग टाइम है आपका, उसमें आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को एनकाउंटर करना पड़ता है। तो अब ये तो नॉर्मल था बॉडी का फंक्शन कि जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो आपका हार्ट बीट वगैरह बढ़ेगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड ये जनरली क्या होता है कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, स्ट्रेसफुल कर रहा है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो बेचारा धीरे धीरे वीक हो जाता है। वीक इन द सेंस कि उसका फंक्शनिंग, उसकी पावर खत्म होती शुरू हो जाती है, सिंपैथेटिक सिस्टम उसको टेक ओवर करना शुरू हो जाता है, तो बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, उसने हार्ट बीट बढ़ानी है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो धीरे 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 वो हार्ट के ऊपर भी असर करता है और बीपी के ऊपर भी असर करता है। तो साइंटिफिक तरीके से अगर आप देखें तो ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट करें, जिससे वो बैलेंस मेंटेन होता रहे, जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, नेगेटिव ना हो। तो ये तो हुई ना साइंटिफिक तरीके से बात करने का तरीका, कि भाई आपको और अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो बैलेंसिंग है, ये HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं, हार्ट का रेट जो चेंज होता है बीट टू बीट, उसकी वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं।
और जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते चले जाते हैं, एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम होती चली जाती है, कि मतलब जो वेरिएबल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तो ये भी देखा गया कि मेडिकली इसको जो आपको कोई मेडिसिन वगैरह लेके तो आप इसको थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं या एंजाइटी की मेडिकेशन ले लेते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। बट ये जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, आपने सुना होगा ना कि शुगर पिल दे दी और ठीक हो गया। तो ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है इसका असर इसके ऊपर होता नहीं है। तो सिर्फ ब्रीदिंग के अंदर एक ये टेक्निक है, जो ये 12 सेकेंड, मतलब जो 11 to 12 सेकेंड, जो एकादशी उज्जयी जिसको मैं नाम देता हूँ, जिससे आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक का बैलेंस इमीडिएटली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो फ्रॉम मेडिकल परस्पेक्टिव, फ्रॉम साइंटिफिक परस्पेक्टिव ऑल्सो, अगर आप एकादशी उज्जयी करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम का बैलेंस बन जाता है और अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो जब वो अच्छा होता है तो एक असर तो आपके हेल्थ के ऊपर होता है, और दूसरा असर आपकी जो स्ट्रेस को फाइटिंग की कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ना के इन द सेंस कैसे, कि भाई जैसे अब पहले था, मान लीजिए कि भाई आपका सिंपैथेटिक सिस्टम था, उसने आपका हार्ट रेट बढ़ा दिया, बीपी बढ़ा दिया, और ब्रेक आपकी लगी नहीं उसकी, तो बढ़ता चला गया। अब आपने क्या किया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो जैसे ही एक लेवल से ऊपर होना शुरू हुआ हार्ट बीट का या बीपी का, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने इमीडिएटली ब्रेक लगा दी उसको, कि इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो नतीजा क्या हुआ कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो नहीं चेंज होने वाली ना, वो तो एक्सटर्नल सिचुएशन है, जो भी है आपका रिएक्शन है, सब है, चल रहा है। बट जो आपका जो फिजिकली जो बॉडी है वो, अब आपको उस बॉडी के कारण से माइंड भी, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो माइंड भी उसमें अफेक्ट हो जाता है, तो ये दोनों जो है या थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं उस सिचुएशन को डील करने के लिए। सो फ्रॉम द मेडिकल परस्पेक्टिव, ये जो एकादशी उज्जयी है, इट इज ए एक्सीलेंट वे of balancing your parasympathetic and sympathetic system. और मजे की बात यह है कि इट इज ए वेरी क्विक वे, वेरी क्विक वे, मतलब इन मिनट्स इट विल स्टार्ट शोइंग रिजल्ट्स। दो छोटी छोटी इंक्वायरीज आ रही। हाँ जी। एक तो जो कपाल भाती प्राणायाम होता है, हाँ जी। उससे ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता है या उससे एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट उससे भी होता है? हाँ। कहते हैं ना जिनको नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर है पैरासिम्पैथेटिक वो नहीं, ना उससे करें। सिंपैथेटिक सिस्टम उससे एक्टिवेट होता है, अच्छा, पैरा नहीं। पैरा नहीं। तो इसीलिए ब्लड हाँ, प्रेशर वगैरह को बोलते हैं कि नहीं करें, नहीं करें। अच्छा। क्योंकि इससे सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो और ज्यादा उसमें बीपी बढ़ने का चांस हो जाता अच्छा। दूसरा, यदि इनहेल का टाइम किसी का ज़्यादा हो रहा हो और एक्सेल जल्दी से हो जा रहा हो और वो मतलब होल्ड नहीं कर सकते ना, एक्सेल जल्दी हो जाता है, है। हाँ। उसका भी कुछ कोई तरीका है? हाँ, कैसे है उसका? तो यही आप, अगर आप मतलब इफ यू आर ए वेरी बिगिनर, तो आपके लिए ये जो एकादशी उज्जयी है ये बेस्ट। तो आप उसको माइंड में काउंट कर सकते हैं, इनहेल करते वक्त काउंट करें 1 2 3 4 5, देन 5 4 3 2 1, और फिर इमीडिएटली फिर 1 2 3 4 5 5। अगर आप इसको ठीक से करेंगे तो आपकी जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट
5 साइकिल पर मिनट बनती है। 12 सेकंड से करें तो 60 सेकंड हो जाता ना, तो 5 साइकिल बनती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और एडिशन इसका बता रहा हूँ, जो जो करने से एडिशनल फायदा भी होगा और काउंटिंग भी आपकी बेटर रह जाती है। हर्ष, हाँ जी, इसमें बीच में रेस्ट है का या नहीं? ये जस्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, नो रेस्ट बिटवीन? नो रेस्ट। या 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 the 4 second 5। thing, are you doing from both nostril or only one, or हाँ, you are? आपको नहीं, आपको रोकना तो नहीं है ना। तो नॉर्मली आप जो शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि एक नाक से ज्यादा जा रहा है, बट जैसे जैसे करेंगे आप धीरे धीरे, तो वो बोथ नॉस्ट्रल से ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छे अच्छे इसमें ये जो अशोक जी ने क्वेश्चन किया है, आपने लास्ट टाइम कहा था ना, ब्रीथ करते हो तो फिर थोड़ा आधा सेकंड इंटरवल होता है, फिर और ब्रीथ करते हो। वही क्वेश्चन है मेरे ख्याल इनका। हाँ वही है। तो उसमें क्या है कि जो जब भी आप इनहेल से एक्सहेल स्विच करोगे तो या थोड़ा टाइम तो उसमें लगता है ना। वो हाफ ए सेकंड जो है वो लगता है ना, ऑटोमेटिकली लगता है, आप इमीडिएटली तो नहीं कर सकते। राइट राइट। तो वो जब स्विच करना है ना, उसी में वो 1 सेकंड लग जाता है। और उसी उसी तरह से वो जो वापस लाना है उसमें फिर से स्विच करना है। एक्सेल किया तो उसके बाद इनहेल करना है, वो भी स्विच है दोबारा से। उसमें भी वो इंटरवल के बीच में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसीलिए 5 सेकंड में बोलता हूँ कि 5 सेकंड करेंगे, स्विच करेंगे तो उसमें 11 सेकंड के आसपास बन जाता है, 11 से 12 के बीच में। तो पहला तो ये हो गया कि इस ब्रीदिंग को आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये ब्रीदिंग, पहली चीज तो ये किसी वक्त भी हो सकती है। इसके लिए किसी किस्म की वो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आप कभी भी बैठे टीवी देख रहे हैं तब भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। आप इसके लिए कोई और ऐसा भी कुछ नहीं कि आपने हाथ ऐसे किया है, लोगों को लग रहा है प्राणायाम कर रहा है कुछ ऐसा। आप जब सिंपली बैठे हुए इसको कर रहे हैं, लेट के नहीं होती। लेट के नहीं। ठीक है। तो अरे सोने जा रहे हो क्या? हाँ जी। सोने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैंने ट्राई किया है। जो सोते टाइम ना, क्या है कि आप राइट हैंड को सोते हो तो करते स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड सोने को। तो एज में कहते हैं कि सिर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अच्छा है, पहले तो चला जाता था जैसे मसल स्ट्रांग थे। सो आई बॉट इट some kind of new pillow, so it has a slant sort of 4 inch 5 inch। तो उसमें वो बहुत हेल्प होती है। हाँ तो जो है ना वो क्या बोलते हैं, रात जैसे आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है, वो जो है क्या है, तो उसमें ये हेल्प होती है। हाँ आपको मशीन छूट जाती है वो जो अब स्लीप लगाते स्लीप हाँ एपनिया वाली। हैं। हाँ, हाँ ठीक है। स्लीप एपनी। हाँ। तो तो उसमें एनीवे, तो ये जो ब्रीदिंग है ना, एकादशी उज्जयी वाली, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, मगर बैठ के ही करें आप इसको। आप सुबह उठ के बेड से निकलने से पहले अगर 2 मिनट कर लेंगे तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। सोने से पहले बेड में बैठ के लेटने से पहले कर लेंगे। दिन के टाइम में आप कहीं बैठे हुए हैं, कार में कहीं जा रहे हैं, वहां कर लीजिए। मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसको हम इवन आप ड्राइव करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आपका ध्यान इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने स्टार्ट किया है ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा था स्पोर्ट्समैन ब्रीदिंग। उनकी जो ब्रीदिंग होती है बहुत स्लो होती है, मतलब हार्ट बीट हाँ जो होता है ना दूसरों से। तो मैं सोच रहा था उसका कोई कनेक्शन है, और आप हाँ, जैसे चलते गए तो कोई कनेक्शन नहीं लगता मेरे ख्याल। मतलब कनेक्शन सिर्फ ये है ना कि स्पोर्ट्समैन को भी आपका, जब आपको एथलेटिक्स कर रहे हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है ना ज्यादा। तो ये इस उनकी ब्रीदिंग जो स्लो ब्रीदिंग है उससे भी वो पैरासिम्पैथेटिक को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि हार्ट बीट ज्यादा बढ़े ना। तो और ये रिलैक्सेशन के लिए भी होता है कि आप एक्सहेल को लंबा करें। इनहेल के अलावा इनहेल छोटा और एक्सहेल लंबा करने से रिलैक्सेशन होता है। एक्सहेल लंबा करने से क्या, अगेन पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर असर। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस उज्जयी, एकादशी उज्जयी। सो फर्स्ट थिंग इज कि भाई इसको प्रैक्टिस जो है वो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं।
सेकंड चीज, इसको किसी वक्त भी कर सकते हैं। थर्ड चीज क्या है, अगर आप जब इसको शुरू करें तो कोशिश करें कि कम से कम 5 मिनट करें। जनरली विद इन 2 मिनट्स अगर आपने इसको शुरू किया है तो विद इन 2 मिनट्स आपका बैलेंसिंग जो है वो शुरू हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक की। तो अगर आप 5 मिनट करते हैं तो आपने कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए वो बैलेंस्ड रखा है। तो ये जो बैलेंस रखना है ना, ये क्यूमुलेटिव है। मतलब आप जितना ज्यादा देर तक, जितने बार बैलेंस करेंगे, उतना धीरे धीरे आपके जो जो बॉडी है उसको अडॉप्ट कर लेती है उस पर्टिकुलर स्टेट को। तो ये दूसरी चीज हो गई कि ये आपको कहीं भी करेंगे, कर सकते हैं, बैठ के ही करना है, लेट के नहीं करना है इसको। तीसरा, अब आपको थोड़ा सा और, अब हम जा रहे हैं रियली प्राण की तरफ। ठीक है, अभी तक तो ये मेडिकल उसमें बता रहा था मैं, बट नाउ ऐड समथिंग टू दिस। हम लोगों की जो नाड़ियां होती हैं, जो प्राण प्राण नाड़ी भी कहते हैं, या आप समझ लीजिए कि ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वगैरह के अंदर भी उनको यूज किया जाता है, मेरिडियंस कहते हैं उनको। तो ये सारी मेरिडियन, सारी नाड़ियां जो है हमारी फिंगर्स में जाती है, फिंगर टिप्स में। तो ये जो पांचों फिंगर्स हैं, इनका डिफरेंट नाड़ियों के साथ में कनेक्शन है। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरी ये फिंगर है, और इसको अगर मैं ऐसे पकड़ लूं जैसे एक बच्चा पकड़ता है, समझ गए? तो छोटा बच्चा आपका हाथ पकड़ता है तो एक फिंगर पकड़ लेता है वो। प्रेशर जो होता है वो बड़ा जेंटल प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर नहीं होता, बट फर्म होता है, वो पकड़ा होता है उसने। तो अब जनरली उसने तो फिंगर को पकड़ लेना ना ऐसे। अब मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे टिप तो अलग निकली हुई है ना, बट अगर आप इसी को पकड़े और आपका जो एक फिंगर है वो पूरी टिप तक चली जाए, ऐसे ऐसे पकड़ना, एक हाथ से दूसरा हाथ है। संजीव, तो एक हाथ से ये जैसे आपने पकड़ा, ये आप देखिए, पकड़ के ट्राई कीजिए अपने हाथ को, कर रहे हैं try। है ना? और कोशिश ये है कि भाई जो आपकी टिप है ना उसकी तरफ थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर एडिशनल है, मतलब कहने का मतलब है टिप की तरफ थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने ब्रीथ किया, इनहेल और एक्सहेल का एकादशी उज्जयी, तो आपने एक फिंगर, पहली फिंगर पकड़ ली एक हाथ से दूसरे हाथ की फिंगर, और अब आपने इनहेल और एक्सहेल का पूरा 12 मिनट 12 सेकंड का साइकिल को कंप्लीट किया, 11-12 सेकंड का। ठीक है, अब आपने उसको छोड़ा और दूसरी फिंगर पकड़ ली, तो नेक्स्ट साइकिल में आपने दूसरी फिंगर पकड़ी, थर्ड साइकिल में तीसरी फिंगर पकड़ी, फिर चौथी, फिर पांचवी, उसके बाद हाथ चेंज कर लिया, तो दूसरे हाथ का शुरू हो गए। तो अब इसमें दो चीजें आपको देखनी। पहली चीज तो जो आपने जो फिंगर्स पकड़ी है, इससे आपकी प्राण नाड़ी जो है उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं। आपकी ब्रीदिंग चल रही है, उससे आपको पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक की बैलेंसिंग चल रही है। साथ ही साथ में सिर्फ ये फिंगर को होल्ड करने से आपकी प्राण नाड़ी जो है वो स्टिमुलेट हो रही है। तो ये दोनों चीजें जब आप इकट्ठा करेंगे तो एक फायदा और होगा। जब आपका एक हाथ कंप्लीट हो गया, एक पकड़ा, दो पकड़ा, तीन पकड़ा, चार पकड़ा, पांच पकड़ा, 1 मिनट हो गया, तो मतलब हर हाथ 1 मिनट के लिए हो गया। तो अगर आपको मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई आप 5 मिनट कम से कम कीजिए, मान लीजिए आपने कहा मैं 10 मिनट करता हूँ, तो आपको 10 मिनट को भी काउंट करने की जरूरत नहीं कि 10 मिनट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आपका हाथ बता देगा कितनी बार आपने हाथ को किया। तो काउंटिंग भी आसान हो गई आपके लिए, टाइम भी पकड़ा गया। बट जो मेन चीज है वो ये है कि उस ब्रीदिंग को करें
साथ में इस तरह से अपनी एक एक फिंगर हर साइकिल के बाद करते जाए, हाथ फिर चेंज करके दूसरे हाथ का कर ले, फिर वापस आके पहले हाथ का कर। तो इस तरह से करेंगे तो अब आपको इस एकादशी उज्जयी का फायदा ट्रिपल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं तो आपको विद इन मिनट्स मतलब आपको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। बट अगर आपको रिलैक्सेशन की फीलिंग नहीं आ रही क्योंकि जब आप कर रहे हैं तो आप तो ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रेस को खत्म करना है आपको, तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मैं इतना रिलैक्स नहीं हुआ, बट आपके ऊपर जो क्यूमुलेटिव असर उसका हो रहा है वो तो होना शुरू हो गया जैसे ही आपने ये ब्रीदिंग शुरू की। तो अगर वो आपको एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में वो इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो इतना उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाएगा कि देन यू विल स्टार्ट सीइंग कि हाँ कैसे डिफरेंस है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट थिंग यू विल नोटिस कि जैसे आप फिंगर्स पकड़ते हैं तो हर फिंगर ये दिस में टेक सम टाइम क्योंकि अब वो उसमें आपको सेंस करना है उसको कि हर फिंगर के बाद में आपके अंदर जो चेंज है ना एनर्जी का वो आप सेंस करना शुरू हो सकते हैं। इट विल हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी फिंगर दबाने से मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, कौन सी फिंगर दबाने से मेरी ब्रीदिंग ठीक हो रही है, कौन सी फिंगर दबाने से मतलब यू विल एक्चुअली स्टार्ट रियलाइजिंग दिस एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली नो कि कौन सी फिंगर में कौन से प्राण मेरिडियन जो जा रही है। बट दैट वी विल डू इट लेटर क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल है। so when you start doing it and after a few days of practice, so then we can go into the experiential questions and explanations. तो ये आपको मतलब दिस इज व्हाट हैज गॉट दिस टू डू विद मेडिटेशन, इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद मेडिटेशन क्योंकि ये आपके प्राण को अलाइन करती है। So I think this is something that we all must do on a regular basis. Aligning with what? अलाइनिंग वर्ड इसमें हम इस तरह यूज करते हैं कि भाई आपका जो प्राण जो है ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस चल रही है, कहीं लीकेज चल रही है, वो सारी खत्म हो जाती है। तो जो अगर आपकी जो मेन नाड़ी है जिसमें से आपको जैसे एक पाइप है उसमें से पानी जाना चाहिए था तो और वो पाइप में से पानी जा नहीं पा रहा है क्योंकि रास्ते में कहीं लीकेज है, कहीं ब्लॉकेज है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सब ब्रीदिंग इस तरह करने से वो पाइप की जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो जाती हैं, लीकेज बंद हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि जो पूरा प्राण जो जाना चाहिए था ना वो ठीक से जा रहा है। तो इट इज नाउ अलाइंड विद द वे इट शुड हैव बीन। तो इसलिए हम लोग इंग्लिश में हम अलाइन वर्ड को यूज कर लेते हैं इसमें। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में प्राण का फ्लो बहुत बड़ा मायने रखता है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। प्राण का फ्लो जब भी आपका मैसअप हो जाता है तो उसका पहले माइंड पर और फिर फिजिकल बॉडी के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। और प्रभात जी आपके लिए वो उसका असर आपके सब चक्रास के ऊपर होना शुरू हो जाता है। चक्रास के साथ में उसका असर फिर होता है आपकी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आपकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए नाड़ी होती है। ओपन करने से सुषुम्ना नाड़ी को आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ में
बन जाता है। और उसी के अंदर आप थोड़ा सा और अपना इंटेंशंस को जब चेंज करते हैं तो आपको वो सिद्धियां भी देना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत जो है और जो इसका जो अंत है वो प्राण से ही होना चाहिए। प्राण को कंट्रोल करना, अलाइन करना, उससे आपका जो 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 आपके शरीर का प्राण सिस्टम है, प्राण का जो फ्लो है वो बेटर करना, और उसके बाद में आपके शरीर के प्राण से निकलकर यूनिवर्सल प्राण के साथ में आपको कनेक्ट करना। आप ये देखिए ना, जैसे आपका घर है, उसके घर के अंदर आपकी प्लम्बिंग चल रही है। उस प्लम्बिंग में आपके डिफरेंट रूम्स के अंदर, मतलब वॉशरूम, किचन, ये सब जगहों में पानी जा रहा है। तो बड़ा घर है, कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग है, सब चल रहा है। मगर जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है वो एक पाइप से ही आ रहा है ना, बाहर से। मगर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने घर की प्लम्बिंग अच्छी कर ली है, मगर आपको कनेक्शन तो चाहिए ना म्यूनिसिपैलिटी के पानी से। तो इसी तरह से हमारा जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो फिजिकलिटी के अंदर, वो हमारा, समझ लीजिए बॉडी अगर घर है, उसके अंदर ये प्लम्बिंग जो है प्राण की प्लम्बिंग है। और ये प्राण की प्लम्बिंग के साथ साथ कनेक्शन है हमारा जो बड़ी म्यूनिसिपैलिटी है ना, डिवाइन म्यूनिसिपैलिटी, उसके प्राण के साथ। तो जब हम सिर्फ घर के प्लम्बिंग पे ही काम करते हैं तो घर की प्लम्बिंग साफ हो गई, सब जगह पानी अच्छा आना शुरू हो गया, हर जगह प्राण अच्छा हो गया, ठीक है, बड़ा अच्छा हो गया। पर जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अब आपका जो कनेक्शन है ना डिवाइन के साथ में, उसको आपने इम्प्रूव करना है। तो मान लीजिए कि म्यूनिसिपैलिटी जो है आपको 50 PSI का पानी भेज रही है, और आपके घर के बाहर जो वॉल्व लगा हुआ है उसने उसको ड्रॉप करके और आपको 15 PSI पे भेज दिया अंदर। वैसे तो वो वाल्व का काम ही ये है कि भाई आपको पानी को जो है वो, क्योंकि म्यूनिसिपल वाटर तो बहुत हाई प्रेशर पे आ रहा है, तो उसके वाल्व की वजह से उसको आप रोक लेते हैं, थोड़ा सा प्रेशर कम कर देते हैं उसको। मगर अब ये एग्जाम्पल बड़े अजीब से हैं, बट समहाउ सिमिलैरिटी नजर आ जाएगी। तो इसी तरह से जो हमारी जब कुंडलिनी जो है वो जब जागृत नहीं होती है, तो वो जो हमारा म्यूनिसिपल पानी का वाल्व जो लगा हुआ है घर के बाहर, वो ऑलमोस्ट बंद पड़ा है, उसमें से बहुत कम पानी आ रहा है अंदर। मतलब जैसे अगर 15 PSI चाहिए था, उसकी जगह पे 2 PSI आ रहा है। अब वो 2 PSI आ रहा है अंदर से, अंदर की घर की प्लम्बिंग भी गड़बड़ाई हुई है, कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है, कहीं पे कुछ लीकेज है। तो जो किचन में पानी जो आना चाहिए था वो बेचारा 0.5 PSI पे ही पहुंच जाएगा। तो इसी जो प्राण जो है, जो हमारे यूनिवर्सल प्राण जो है, जो उनका कनेक्शन है हमारा, हमारी कुंडलिनी के सोने की वजह से, जागृत ना होने की वजह से, वो जो वॉल्व जो हमारा है उसने उसको ब्लॉक किया हुआ प्राण को। तो फिर हम इसके ऊपर जब वर्क करते हैं तो हम रिवर्स में वर्क करना शुरू होते हैं। रिवर्स में इन द सेंस, पहले हम घर की प्लम्बिंग ठीक करते हैं कि भाई अगर घर में जो पानी आ रहा था 0.5 PSI पे, वो ऐसा तो नहीं कि घर की प्लम्बिंग की वजह से कम हो रहा था, कि वॉल से तो 2 PSI का आ रहा है, यहाँ पे 0.5 पे ही कैसे रुक गया। तो पहले घर की प्लम्बिंग ठीक करते हैं। घर की प्लम्बिंग ठीक हो गई, 2 PSI पे पानी आ गया। अब हम कहते हैं 2 पे क्यों आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी ने तो मुझे 50 पे भेजा था, वॉल के हिसाब से तो मुझे 15 करना था, तो 2 पे क्यों आ रहा है। तो अब आप वॉल की तरफ जाते हैं कि भाई वॉल में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो फिर आप वॉल को खोलते हैं, वॉल खोलते हैं तो 15 तक लेके जाता है। तो अब आप कहते हैं अब मुझे म्यूनिसिपल पानी के जो प्रेशर है उसके साथ में पूरी तरह अलाइन होना है, मुझे 50 चाहिए, 15 से काम नहीं चलेगा। तो देन यू वर्क ऑन द थर्ड सिस्टम। तो प्राण के अंदर भी मतलब ये हमारी ये जो टेक्निक्स हैं ये सारी, उसमें पहले हम शरीर के प्राण को अलाइन करते हैं या
साफ करते हैं। उसके लिए ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं। प्राणायाम जो है उसका मतलब होता है प्राण को कंट्रोल करना, प्राण के आने जाने को। तो ये जो बहुत ये जो जय बताया है, ये सारी जो टेक्निक्स हैं जिससे हमारी अंदर की प्लम्बिंग ठीक हो जाती ये एक्यूपंक्चर से भी करते हैं प्लम्बिंग है। ठीक? हाँ, ये बिल्कुल एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, वो सारे उसी, ये उनको वो मेरिडियंस के नाम से बोलते हैं, एनर्जी मेरिडियंस बोलते हैं। वो बेसिकली वही प्राण का ही नाड़ी है। वो डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट टाइम्स के अंदर जब उन लोगों ने इसको यूज़ किया और वो डिस्कवर किया, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसकी टेक्निक का नाम वगैरह दिया। तो सो कमिंग बैक टू दिस, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं, ये इसकी क्लैरिटी अगर हो जाती है ना, तो फिर देन वी कैन वर्क बेटर ऑन दिस। सो नाउ व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेशन, before you actually get to the meditation point, it is better to clean up your prana nadis, कि प्राणा का फ्लो जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए। तो जैसे मैंने कहा ना, प्राण फ्लो से, अगर प्राण फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या लीकेजेस हैं, तो उसका असर जो है वो एक तो शरीर के ऊपर होता है और दूसरा उसका मन के ऊपर होता है। तो जैसे जैसे हम प्राण फ्लो को बेटर करना शुरू कर देते हैं, अब ये तो नहीं कि हम कह सकते कि हम इमॉर्टल शरीर हो जाएगा हमारा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट जो कुछ जो अननेसेसरी की जो व्याधियां हैं, जो जो अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ी सी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो आपका जो माइंड है ना, उसको एक फ्रीडम मिल जाती है कि भाई अब मुझे ये परवाह नहीं है कि भाई मेरा शरीर मुझे परेशान करेगा, अब मैं अपने आप कुछ कर सकता हूँ। और सेकंड लेयर के ऊपर जो डीपर लेयर है, उसके अंदर जैसे हम लास्ट टाइम बोल रहे थे ना कि प्राण से एक्टिवेट होती हैं वासनाएं। अब प्राण जो है वो हर जगह भाग रहा है इधर से उधर, तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट वासनाएं एक्टिवेट हो रही हैं, डिफरेंट थॉट्स आ रही हैं। तो जैसे ही आप उसको प्राण को कंट्रोल कर लेते हैं, आप कहते हैं भाई तुझे हर जगह नहीं जाना है, इसी जगह से जाना है, तो अब वो जो है डिफरेंट वासनाओं को एक्टिवेट नहीं करता है। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है माइंड को कि काम हो गया। क्यों? माइंड के काम ना होने के पीछे का कारण है बहुत सारे विचार और इच्छाएं उसमें जागृत होना। जैसे ही हम वो उन विचारों और इच्छाओं के जागरण को कम कर देते हैं, माइंड ऑटोमेटिकली फील होना शुरू हो जाता है कि काम हो गया। So, so that's why we start on the external, go inwards a little by little, and then we go into deeper. And इस process के अंदर then comes a time when you break away from the identification with the body. I am the body, that's why I have pain. I am the mind, that's why I am upset. ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे हम इसको ब्रेक करते हैं, एंड दैट्स वेयर योर मेडिटेशन विल देन गो बैक एंड स्टार्ट टीचिंग यू कि you are different than your body and the processes that are happening in the body. And this, when you go into that direction then eventually connects you with the divine, and you get an experience of self-realization. So it's a process, it's a slow but steady process. As long as we clearly understand the process, we can create remedies for ourselves. हम लोगों को वो मतलब एक वो जो कहते हैं ना कि हर हर दर्द के लिए एस्पिरिन दे दो, वो जरूरत नहीं है उसकी। फिर तो जैसे जैसे हम लोग इसको समझना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे एक्सपीरियंशियल भी होना शुरू हो जाता है, और वैसे वैसे हमें ये भी पता लग जाता है कि कैसे हम इस अपने आप को अपने लिए कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं इस प्रोसेस को।
so anyway, so let's go slowly, क्योंकि जैसे ही पहला स्टेप आप कंप्लीट करेंगे ना तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो एक्सपीरियंशियल में चले जाना शुरू हो जाता है, तो देन वी स्टार्ट गोइंग टू द सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स एज वी गो डीपर इनटू दैट. And मजे की बात है कि it's very simple to start. It does not require a huge effort, huge preparation, but just clarity of the mind कि हाँ, these are the things we should be doing, and then it will help us. Harsha, let's जी. once you have become in these practice, so then my question is that every time when you are going to do the medication, not medicine, Meditation. you had to do all these first No. and then. No. No. जब आप शुरू करते हैं ना, then it is necessary आपको ये करना, क्योंकि आपने शुरू में अपने को अलाइन करना जरूरी है. Yeah. जब आप एक बार अलाइन हो जाते हैं, जब आपका एक हैबिचुअल अलाइनमेंट आ जाता है, तब उसी अलाइनमेंट को आप अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हो. दैट मीन्स कभी भी आपका आउट ऑफ अलाइनमेंट जाता है तो आप अपने माइंड से ही उसको कंट्रोल कर सकते हो. माइंड एंड एक चीज और हर जी क्वेश्चन मेरे को आता है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं. हाँ जी. तो दो तरह के वो है. एक में तो जिसमें आप चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं. हाँ जी. और एक जिसमें कि आप पेट को एक्सपेंड करके लंग्स में हवा लेते हैं. हाँ जी. विच वन इज बेटर और प्रेफर्ड वन? हमारी जो यौगिक ब्रीदिंग है वो हमेशा डायफ्राम तक जाती है, पेट वाली जगह. पेट से. उससे आई थिंक उसके पीछे बेसिक रीजन ये दिखा है मेरे हिसाब से, तो बिकॉज यू हैव ए मोर एयर गोइंग ऑन इन योर सिस्टम. खैर उसकी साइंटिफिक एनालिसिस तो मेरे पास नहीं है उसका, तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा. मगर आप ठीक कह सकते हो, बट एट द सेम टाइम क्या होता है इवेंचुअली, एंड दिस इज अगेन एक्सपीरियंशियल, सो यू विल नो इट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स. जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के साथ में आपके प्राण का फ्लो भी होता है. तो प्राण के फ्लो में दो चीजें हैं, एक अटेंशन और एक ब्रीदिंग, जो इमीडिएट आपको कंट्रोल आप करते हैं. तो अगर आप जब ब्रीथ कर रहे हैं तो जैसे ही आप उसको ब्रीदिंग को पूरा नीचे तक पेट के जो नीचे का हिस्सा है वहां तक ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ब्रीदिंग तो वहां तक नहीं जाती है. ब्रीदिंग तो पेट तक जाएगी, ठीक है, मगर जो प्राण का जो उसके साथ में जो पुश है वो आपके सारे चक्रास को छोड़ नीचे जाता हुआ कुंडलिनी की जगह, मतलब रूट चक्र तक, मूलधारा तक चला जाता है. तो शुरू में आपने ब्रीदिंग की डीप करके आपको प्राण को अलाइन करने के लिए, बट यही सेम ब्रीदिंग आप इवेंचुअली यूज करेंगे फोकस्ड मेडिटेशन के लिए. अगर आपने सिद्धि की तरफ जाना है तो प्राण को मूलधारा चक्र तक लेके जाएंगे, जिससे कुंडलिनी जागृत हो जाए. तो प्राण में हर दो चीजें हैं, इससे और भी कोई तीसरी चीज भी है? एक तो ब्रीदिंग है, अटेंशन है, उसके बाद तो माइंड आ जाता है. माइंड के इंटेंशन से फिर चलता है. पहले ब्रीदिंग और अटेंशन एंड बाद में इंटेंशन. बात जी, ये मिसिंग ऑफ क्लास का रीजन है आपका ये? आपने पहली क्लास मिस करी थी, उसकी वजह से आप डिप्रेशन कर रहे हो? मक्खन जी के नोट पढ़ लेना. तो नहीं, बड़े अच्छी सवाल है, मतलब इट्स वेरी गुड. मतलब हम लोगों का ये बड़ा अच्छा चल रहा है डिस्कशन. बट यू सी हाउ दिस होल functioning will work. You start with something external, then you keep going in deeper and deeper. Eventually, to answer again your question, Prabhaji, same thing. Eventually, you get to a point where the intention will make the prana flow. And this intention will not just, you will not, almost, I have never seen, almost never, एक आदमी जो इंटेंशन करता है अपने प्राण के लिए,
क्योंकि उस स्टेज पे जब वो आप पहुंच जाते हैं ना, प्राण कंट्रोल करना इंटेंशन के साथ में, तब आप दूसरों के लिए यूज करते हैं उसको। तब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसकी हेल्थ ठीक हो जाती है। तो तब आप मतलब वो आप वो उस यौगिक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो वो स्टेज तो बहुत अच्छी है, बट अगेन स्टार्ट स्लो, टेक स्टेप बाय स्टेप। एज वी गेन एक्सपीरियंसेस देन वी विल नो द नेक्स्ट स्टेप। छोटी सी टॉर्च लेके ना, 2 मीटर का रास्ता अगर हमको नजर आ जाता है तो उससे हम सैकड़ों माइल्स जा सकते baby steps. हैं। या दैट्स ऑल वी नीड। वी डोंट नीड टू हैव द होल मतलब हाईवे टू बी लाइटेड अप। वी जस्ट नीड अपना सामने का थोड़ा सा रास्ता लाइट अप हो जाए। एज वी गो फॉरवर्ड वी विल रीच। बट अच्छी बात है कि हम लोगों की डिस्कशन में वी आर एक्चुअली टचिंग ऑन द होल प्रोसेस एंड वेयर हाउ इट गोज एंड वेयर इट गोज। सो इट्स गुड टू नो आल्सो। बट चलना तो है, आपको अपने आप पड़ेगा उसको। ये गाइडेंस जो आप दे रहे हैं ना, हाँ जी, मिलती नहीं कहीं से, सिर्फ आपसे मिल रही है। बस ये ऊपर वाले की मेहरबानी है जी, मेरे थ्रू आ रही है, मेरे से नहीं आ रही। जैसे भी कहो, हाँ, तो आई एम ग्रेटफुल। या मी टू, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल। तो ठीक है ना, ये तो ये, वीडियो हाँ ये जी, वीडियो शेयर करना अलाउड है जी फैमिली मेंबर्स के? बिल्कुल करें, आप जरूर करें। जितना हम शेयर करो उतना बढ़ता जाएगा ये। बड़े जरूर करें, जरूर करें। मतलब आप अपने किसी को संजीवी दिखाना चाहते हो तो ना आपको भी आप भी आओगे, जब वो देखेगा वीडियो वो कहेगा, आपको देखेगा मैं उसको भी देगा बट आपको भी देखेगा भाई साहब। नहीं, डेफिनेटली शेयर कीजिए, क्योंकि आई इसमें नो। तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, हम लोग कोई गलत बात तो नहीं कह रहे किसी को। और उसमें ये है कि कहीं एक आध मेरी बातें हटानी पड़ेंगी तुम्हें, बस उसे म्यूट कर देना उस टाइम। But anyway, so just coming back to that same subject again, मतलब this is the way it works. Lots of details are there, lots of complexities are there, but that's okay. We या don't have to go through everything in one go, right? So, but at least आप एक overall process समझ रहे हैं, तो फिर then when you do it, then you are doing it with a logic, with a rational, कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा objective क्या है, कैसे मुझे जाना है। You're not just following anything. We are not no more followers. When we start doing this, you become seeker. So that's the idea. Once you turn into a seeker, then आपका रास्ता आप अपने आप ढूंढ लोगे। अब तो फिर स्पिरिचुअल जर्नी में चल पड़े ना आप। हाँ, फिर तो आप ढूंढ लोगे रास्ता, उसका तो कोई रोक नहीं सकता फिर उसको। मोदी जी यही तो ट्राई कर रहे हैं भैया, सब ठीक हो जाओ, इसमें लड़ाई का कोई जगह नहीं है अब। हम्म, ठीक है ना। तो वो एनीवे तो अभी, रिकॉर्डिंग के बाद में कर लेंगे सब वो कन्वर्सेशन, हाँ ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद। तो एनीवे, तो अभी तक जो हमने बात की है उनमें, उसके बारे में अगर आप कुछ और चर्चा, प्रश्न या क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो जरूर। जैसे ये एक्सपीरियंशियल बात आपने जो की, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही उस एक्सपीरियंशियल जर्नी में one will realize कि now we have crossed, we have cleaned up the physical body, now reaching towards cleaning up the mind, vasanas. कुछ चीजें ऐसी है जी कि ये जैसे जैसे आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, हम्म तो आपको बहुत सारे ऐसे आंसर्स भी मिल जाते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा ना हो। हम्म तो क्योंकि अवेयरनेस आप बढ़ती जाएगी। आपका कनेक्शन जो है ना उस नॉलेज के साथ में ऐसे हो जाता है कि वो जब आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सीधा वहां ऊपर चला जाता है और वहीं से आंसर आपके थ्रू आ जाता है वापस। हम्म तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो समहाउ एक्सपीरियंस के बाद में अपने आप क्लियर हो जाते हैं। आपको पता नहीं लगता कि कैसे हुआ, मैंने किताब तो पढ़ी नहीं फिर भी कैसे आ गया। बट वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आता है और बड़ा साफ सुथरा आता है जवाब।
सो एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर जब आप जाएंगे तो इट इज डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट यूनिवर्स। तो भगवान शायद कृष्ण, कभी कभी हम हाँ गट फीलिंग भी बोलते हैं, या वो हाँ डिफरेंट है। हाँ, इंट्यूशन है, इंट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कभी ना कभी। तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है उसको, बट उसको डेवलप कर सकते हैं आप, जिसको आप गट फीलिंग कहते हैं। बट ये जो है ना, ये कनेक्शन के साथ में आंसर्स जो है, ये एक्चुअली देखिए भगवान कृष्ण से भी कहा गया था युद्ध के बाद में, महाभारत के बाद में, कि आप वो दोबारा से बताओ जो आपने बताया था गीता का पाठ। भगवान ने भी उसको मना कर दिया था। अभी ये वक्त हम योगारूढ़ नहीं है। योग में स्थित था मैं तब। हाँ। जब आप योग में स्थित हो जाते हैं तो आंसर्स आपके सामने आ जाते हैं। जब आप नहीं होते तो आप माइंड आपका जो है वो गेम प्ले जो करता है। भागता है। तो इसमें एसेंशियली ये हुआ कि भाई हम वी स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस, देन फॉलो इट अप विद ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड So, प्राणायाम। and once we are doing this steps nicely, then next, Next will be your mind's focus and intention. And then as we go forward, I mean, अब इस वाली टेप में, आज के डिस्कशन में बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाद में भी रेफर कर सकते हो। बट व्हाट विल हैपन इज कि जैसे मैंने कहा ना, शुरू में क्या होता है, कार चलाना, ड्राइव करना सीख रहे हैं आप, तो क्या होता है, आपका ध्यान कार में ज्यादा होता है, सड़क के ऊपर कम होता है। मगर जब एक बार कार ड्राइव करना शुरू कर देते हैं तो अब आपका ध्यान सड़क के ऊपर हो जाता है, और वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है बाकी। बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। रिफ्लेक्सेस में आ जाता है ना वो, ब्रेक जो तो है। तो ये शुरू जब करते हैं ना, तब आपको ये सारी चीजें करनी है कि भाई ब्रीदिंग करनी है, कैसे करनी, तो इसकी तरफ ध्यान होता है आपका, कार की तरफ। तो एक बार जब आप उसको में उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, तो देन इमीडिएटली हम आपको आपकी वो जो अटेंशन है ना वो, और इंटेंशन और अटेंशन, ये चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब उसको हम यूटिलाइज करना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही हम उसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली हमारा जो भी प्राण हम चला रहे थे, अब हम उसको फोकस कर देते हैं कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो इट बिकम्स, सो इट्स द प्रोसेस स्टार्ट्स विद सिंपल थिंग्स। once you get used to that one, then we go to the next step, which becomes more and more internal, right? भाई ये जो ब्रीदिंग है, हाथ पकड़ा, ये उंगली पकड़ी, ये सारी ऐसे लगता है जैसे एक्सटर्नल है। बट जैसे जैसे आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, then we start going into manipulation of our mind, and with the mind manipulation of the prana, then we go even to the next stage। तो फिर वो योगारूढ़ होने की बात हो जाती है, वो सारी चीजें आती है, बट देन इट बिकम्स इंटरनल। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि देन इट रियली बिकम्स ए मेडिटेशन। तो फर्स्ट जो 2 स्टेज हैं, इनको कितने दिन तक करने के बाद ऐसा लगेगा, या पर्सन टू पर्सन चेंज होता है? ये तो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, बट आई थिंक आप लोग तो सभी बहुत जल्दी कर लोगे इसको, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं अच्छी एनकरेजमेंट है। है। मेरा कहने का मतलब ये है, पूछने का कि कब हमें एहसास होगा कि हाँ, हम इस स्टेज से नाउ वी आर रेडी टू गो अप। आप ऐसा कीजिए, करना शुरू कीजिए, हाँ। आपको पता लगे। और जब आपको लगे कि भाई अभी कुछ और करना है मुझे, ये तो हो गया मेरा, इतना तो हो गया, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, तो देन थोड़ा सा एक और नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगी, तो देन यू विल गो इनटू दैट। बट करना शुरू कीजिए पहले, यू विल नो इट। बहुत सारी क्लैरिटी जो है ना, क्योंकि हम लोग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं सारा, तो उससे आपको क्लैरिटी तो बहुत सारी मिल जाती है ना। जनरली क्या होता है कि एक 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 टेक्निक बताई जाती है कि भाई आप ऐसा करना शुरू कर दो, हो जाएगा। लोग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, बट कहते हैं यार कुछ हुआ ही नहीं आगे, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि भाई हम क्यों कर रहे थे, उससे क्या फायदा हो रहा था, क्या चेंज हो रहे थे, क्या इंटेंशन करनी चाहिए थी, क्या नहीं करना चाहिए। तो एटलीस्ट हम लोग उस लिमिटेशन को है ना, उसको तो हम क्रॉस कर रहे हैं ना, कि हम पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई प्राण चलेगा तो फिर हम उसको, प्राण को कैसे कंट्रोल, कैसे
जैसे मैंने बताया, आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा जब आप करेंगे प्रैक्टिस, कि आपको अपनी ब्रीदिंग और वो जो उससे प्राण चल रहा है, उन दोनों में डिफरेंशिएशन पता लगना शुरू हो जाएगा। पहले स्टेप में आप जब ब्रीथ करते हैं और अटेंशन देते हैं तो प्राण चलता है उसके हिसाब से। दूसरे स्टेप में ब्रीदिंग से आपको मतलब ब्रीदिंग को फोर्स नहीं करना होगा, प्राण को फोर्स कर सकेंगे आप। सो दीज आर स्मॉल स्टेप्स, बट मतलब वंस यू स्टार्ट डूइंग इट देन यू विल गेट टू दैट। फिर एक स्टेप ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर आप पूरे बॉडी ब्रीदिंग हर एक से आपने आपको अब जो आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैं कह रहा था माइंड के साथ में आइडेंटिफिकेशन, ये ब्रेक हो जाए। जिस वक्त ये ब्रेक होगा देन यू आर गोइंग इनटू द कॉन्शियसनेस साइड। तो माइंड रियल्म से बाहर आ जाएंगे। माइंड के रेल्म को तोड़ देंगे। बाकी ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बट एट द सेम टाइम इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट इट विल कम। फायदा ये हमारा शायद एडवांटेज ये रहेगा कि भाई अगर हम करते रहेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे तो हमारे डिस्कशंस में हम लोगों को बहुत और सारे क्लैरिटी, आंसर्स भी मिल जाएंगे। क्योंकि वो भी एक डार्क एली है ना, उसको समझ में नहीं आता। मतलब टेक्निक, जैसे लैंग्वेज के बेसिस भी तो समझ गए भाई, बियॉन्ड माइंड, रियल ऑफ द माइंड, कि वहाँ क्या है, अंधेरा है, उजाला है, क्या है, वो कुछ पता नहीं। वो एक हाँ, पजल है वो वो अभी। एक्सपीरियंशियल। हाँ तो एक्सपीरियंशियल जो है वो उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हम। हाँ। मतलब उसमें पीएचडी कर लो आप, लिख दो बट समझ नहीं आएगा। वो तो इंडिविजुअल भी है ना वो। इवेंचुअली हर व्यक्ति को एक्सपीरियंस तो सेम होता है, उसका एक्सप्लेनेशन वो डिफरेंट तरीके से। नहीं, स्टेज भी तो अलग होगी ना सबकी अपनी, क्योंकि स्टेज तो अलग होगी, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो इट हाँ वो डजेंट तो हाँ, मैटर कि वो एक्सपीरियंस किसको कब हुआ, वो सबको सेम एक्सपीरियंस होते हैं। एग्जैक्टली। बट वो जब एक्सप्लेन करते हैं ना उसको, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट तरीके से देते हैं। इसी इसी बात को जब हम अल्टीमेट उसमें देखते हैं तो वो कहते हैं ना कि सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसको डिफरेंट तरीके से बताते हैं। ये कम सद बहुधा हाँ, में गंती, एग्जैक्टली, इंडियन लोग जो उसको डिफरेंट तरह से बताते हैं। बताते हैं। तो ये सारी जो बातें जो उन्होंने कही हैं, जो भी ऋषियों ने कही हैं, वो दे एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस ना, दैट्स व्हाई दे नो कि हाँ, दिस इज द वे इट वर्क्स। एंड दैट्स व्हाई दे हैव रिटन इट विद फोर्स ना। या जैसे उनके जो डेलिब्रेशंस हुए, फिर राइटिंग की गई, वो सो यू या कैनॉट निगेट दैट, यू कैनॉट ब्रेक इट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड है ना, विद एक्सपीरियंस अबाउट द अल्टीमेट ट्रुथ, जिसको हम राइट। नॉलेज कहते हैं, रियल नॉलेज। इज अमेजिंग, इज अमेजिंग। लेट अस से कि अब हमें बेसिकली लेट्स से कि एक महीने के लिए ये सब ट्राई करना चाहिए एंड देन रिव्यू इट कि हम हमारी अब क्या फीलिंग हो रही है। आई वुड सजेस्ट दैट यू स्टार्ट डूइंग इट। हम्म, जब हम लोग वीक के बाद में मिलते हैं तो हम्म, उसमें थोड़ा सा आपको अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चन है, अपना एक्सपीरियंस कुछ भी वी कैन बताना है, कीप मतलब वी टचिंग कैन कीप अपॉन। डूइंग इट। या हाँ, वही मैं कहने वाला था कि वीक टू वीक करें, तो लंबा गैप ना आ जाए। हाँ, अब करना तो आपके हाथ में है। बट करना शुरू कर दीजिए। लाइक आई सेड, ये जो शुरू की एक्सरसाइज हैं, दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग, नो, नो स्पेशल प्रिपरेशन, नो नथिंग। And 5 minutes or 10 minutes is not a very big deal also. So I think again, just to recapture this whole thing, तो शुरू करने में थोड़ा बहुत योगा करें। Even if you holding 1 or 2 asanas, doesn't matter. Hold it for 30 seconds target. उसके बाद में बैठ के ब्रीदिंग करें। अगर आपको प्राणायाम करने के लिए कोई वो नहीं मिलते हैं साथ में, या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं बीच में एक प्राणायाम कैसे करना, तो आप नेक्स्ट टाइम हाँ, जरूर करेंगे।
हाँ, तो अब आप वो एकादशी उपजाई जो है वो कर लें, क्योंकि उसके लिए आपको एनफ नॉलेज है इस वक्त, तो वो कर लें। एंड एकादशी उपजाई के साथ में फिंगर्स को, हर साइकिल की एक फिंगर, ये कर लेंगे तो ये आपको इमीडिएटली इसका असर पता लगेगा। आप कुछ दिन करके देखिए, आपको इमीडिएटली यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस। चलिए फिर मैं ना अभी रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।